my channel Urban Civil. So today in this video we are going to learn about what is the scale of a map or a scale of a drawing, why north direction is shown on a map, what is a line plan, how to plan residential house considering UDCPR guidelines and principles of planning. To begin with, we will learn what is the meaning of scale of a map or drawing. Now you can see a animation is there on the right side. Okay, this is a Google Earth video, we can say. So on to Google Earth, I am searching for a place named as Chandanahalli, which is in Karnataka. So you can see कि ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे प्लॉट्स है इधर, यहाँ बहुत बड़ा लैंड है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 हेक्टर्स इन एरिया. ओके, नाउ ये बड़े प्लॉट पे अगर समझो कोई भी रोड पास हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग एरियली मेजर करें, एरियल मेजरमेंट यू कैन सी. एक पॉइंट लोकेट किया मैंने एंड उधर से मैंने दूसरा पॉइंट सर्च कर रही हूँ. And you can see it is around 1.5 kilometers in length. But अगर ये इतनी बड़ी जगह है आपके पास, ओके, और ये पूरे जगह का आपको ड्राइंग बनाना है, सो आपके पास इतनी बड़ी पेपर तो नहीं रहेगा कि आपको ये बड़ा ड्राइंग बना सको. You don't have that enough land, like that enough flattened surface. एक पेपर नहीं होता है कि पूरा ड्राइंग बना सको. Over here you can see towards the left एक village map है. Okay, it carries the survey numbers and plots of that region. Okay, so what is done over here कि आपके land पे जितना भी area आपको paper पे दिखाना है, उसको proportions में in definite proportion it is reduced and drawn over here. So वो जो proportion हम लोग use करते हैं to draw, to show the actual image or actual object on the ground to that on your surface of paper, a scale is used. What is the meaning of a scale? The ratio of linear dimension of an element of an object as represented in the original drawing to the real dimension of the same element on the object itself is known as scale. मतलब आपका scale का meaning क्या है? आपके plan length divided by your corresponding length of objects. प्लान लेंथ रिफर्स टू आपके पेपर पे जो ड्राइंग रहेगा, पेपर पे आप जो ड्रॉ करोगे उसका जो लेंथ रहेगा, और एक्चुअल में ग्राउंड सरफेस पे कितना लेंथ है, दैट इज योर करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ ऑन टू मैप यू कैन सी अ ब्लू लाइन इज came over here, like I have drawn a blue line over here, and similarly to that a yellow line is there on ground. Okay, फॉर इंस्टेंस अगर मैं समझू कि ये ब्लू लाइन है, उसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर और ये येलो लाइन का मेजरमेंट है 1 किलोमीटर. सो योर स्केल विल बिकम 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर्स. नाउ वी नो 1 किलोमीटर is 1000 meters and 1 meter is equal to 100 centimeters. So ultimately your 1 kilometer will become 1 lakh centimeters. डिविजन में है, रेशियो में है, then we can cancel out the units, centimeters, and the ratio what you will get is 1:1 lakh. So if I like on plan length, if the length on my paper is 1 centimeter and on the ground it is 1 kilometer, then the corresponding scale will be 1:1 lakh. Now for instance, if I tell you 1 meter on ग्राउंड पे 1 मीटर, आपके पेपर पे 1 सेंटीमीटर है, तो योर स्केल विल बी प्लान लेंथ अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. प्लान लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन द ग्राउंड इज 1 मीटर. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स. ओके, सो दैट विल गिव यू अ स्केल ऑफ 1:100. नाउ प्रीवियसली हम लोग ने देखा कि हम लोग को बोला है कि ग्राउंड पे 1 मीटर है, पेपर पे 1 सेंटीमीटर है, तो स्केल 1:100 आएगा. बट इफ आई टेल यू you have to draw drawing into scale of 1:50. ओके, 1:50 के स्केल में ग्राउंड पे कितना है उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ पेपर पे कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? यू हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग ओवर हियर.
1:50 मतलब क्या, 1/50. Now this 50 into denominator, okay, I want to make it in meters. Okay, so simply क्या करूँगी मैं, denominators 100 होगा उसको try करूँगी. So 2 into 50 will give me 100. So multiply and divide by 2 so that the ratio is maintained. So that will give you 2 centimeters upon 100 centimeters 1:50 के स्केल में. इसका ही मीनिंग क्या है कि 2 सेंटीमीटर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे, उसका मीनिंग है 1 मीटर ऑन ग्राउंड. अगर आपका ग्राउंड पे 1 मीटर का कोई वॉल है तो आप पेपर में उसको 2 सेंटीमीटर से ड्रॉ करोगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्केल 1:50. नाउ स्केल अगर 1:200 बोला तो अगेन इट विल बिकम 1/200. नाउ दिस 200 आई वांट टू मेक इट इनटू 100. सो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2. सो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाफ. So that will give me half centimeters upon 100 centimeters 1:200 के स्केल में. So 1/2 centimeter is nothing but 0.5 centimeters on paper. That will give me 1 meters on ground because 100 centimeters is equal to 1 meters. So basically when you draw a drawing to the scale of 1:50, आपका ड्राइंग है वो 1:100 से डबल बनेगा, मतलब 2 times बनेगा, बिकॉज 2 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन ग्राउंड. वेयरएज अगर आप स्केल 1:200 की यूज करोगे तो 1:100 के मुकाबले आपका ड्राइंग जो है वो आधा बन जाएगा. इट विल बिकम हाफ ऑफ इट बिकॉज 0.5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन ग्राउंड. सो एक चीज याद रखना है, 1:100 है तो एज इट इज आता है. 1:50 है तो आपका ड्राइंग बड़ा बनेगा. 1:200 है तो आपका ड्राइंग छोटा बनेगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्केल्स ऑफ ड्राइंग. Okay. Now next is why north direction is shown on map. कि क्यों हमेशा north direction ही बताते हैं, east नहीं बताते, west नहीं बताते. So समझो अगर आप एक barren land पे हो, okay, and I give you a drawing. आपको ये बंगलो है वो उधर construct करना है, okay, and drawing पे a north arrow is shown. So when you'll go on to the barren land, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरो नॉर्थ फेस कर रहा है या कौन सा एरो साउथ फेस कर रहा है. सो you'll take help of a compass. Now a compass always shows you the north direction. So compass का north direction जब आप आपके प्लान नॉर्थ के साथ मैच करोगे, you will get the proper orientation. आप काम स्टार्ट कर पाओगे, आपको प्रॉपर वे या प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा where you are standing on the ground. And this is the reason why north direction is always shown on a map, and without this north direction your drawing is incomplete. Next, what is a line plan? Line plan is a plan drawn to locate positioning of rooms or units of a building. In this plan, wall thickness are not shown and is replaced by a single line. Now, for instance, if this is a line plan, if I give you an example of, then ये जो single line है, red arrow से जो denote हो रहा है, that line represents the wall. वो line जिधर जिधर है visible line, that means उधर आपका एक wall आएगा. Then the position of doors and windows. मेरे घर का मुझे डोर कहाँ पे चाहिए, विंडो कहाँ पे चाहिए, उसका पोजीशन भी हम लोग लाइन प्लान में बता सकते हैं. The staircase and also location of various units and its area and dimension. सिर्फ लाइन बनाओगे आप हर जगह पे, you can't differentiate कि अगर मेरा लिविंग रूम कहाँ पे है या किचन कहाँ पे है. So for that purpose we write down the name of that unit, और वो नेम के नीचे ही हम लोग उसके डायमेंशंस लिखते हैं. That is, you can see over here बेडरूम है तो 3.5 by 4.5 का वो है. Okay. Now in this line plan, if I am zooming on this region over here of bedroom, तो उसका डायमेंशन है 3.5 by 4.5 units. Now हमें कैसे पता चलेगा कि उसका लेंथ 3.5 है या ब्रेथ 3.5 है? So एक सिंपल ट्रिक है, बेडरूम जिस वे में लिखा है ओरिएंटेशन उसका, अगर वो x एक्सिस पे है
ओके, इट इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आपका जो फर्स्ट डायमेंशन रहेगा दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन। ब्लू कलर में दिख रहे हो, तो अगर बेडरूम आपका स्लीपिंग वे में लिखा है तो आपका फर्स्ट डायमेंशन भी स्लीपिंग होगा, सो 3.5 विल बी दैट एंड द नेक्स्ट लेंथ विल बी 4.5. नाउ सपोज द ओरिएंटेशन ऑफ द रूम इज एज सच लाइक दिस। ओके, नाउ अभी बेडरूम मैंने अगर लिखा है इन स्टैंडिंग पोजिशन, वाई एक्सिस पे लिखा है। ओके, तो एरोज को देखो, फर्स्ट बेडरूम का जो एरो है वही आपका फर्स्ट डायमेंशन का एरो है वाई एक्सिस पे। तो ब्लू एरो डिनोट्स योर 3.5 मेजरमेंट एंड योर पर्पल एरो शोज योर 4.5 मेजरमेंट। सो ये हमेशा याद रखना है कि आप जब भी ड्राइंग बनाते हो, so while writing the names also you should consider this 3.5। जिस वे में अगर स्लीपिंग में लिख रहे हो तो फर्स्ट नीचे वाला जो ब्लू एरो है उसका डायमेंशन लिखो एंड देन दी स्टैंडिंग एरो और दी लेंथ along the y-axis. Now if I am giving you a problem statement like draw a line plan for G+1 detached type structure bungalow in non-core area where the plot size is 13 meters by 19 meters. Also, the length along the north-south direction is 19 meters and east-west direction is 13 meters. The width of the road providing means of access to the plot is 15 meter and is oriented along the east-west direction. The structure to be planned is load-bearing structure and plinth height above ground level should be 600 mm. So ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट थिंग विच यू शुड कम इनटू योर माइंड इज द ओरिएंटेशन। उसके लिए हमें लगेगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। फर्स्ट क्या बोला है कि आपका जो प्लॉट है वो 13 बाय 19 मीटर है। ऑल्सो उसका जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब स्टैंडिंग डायरेक्शन है वो 19 मीटर्स है एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन 13 मीटर्स मतलब स्लीपिंग डायरेक्शन है along x axis is 13 meters. Now road providing means of access मतलब ये प्लॉट को जहाँ से एंट्री रहेगा, फ्रंट रोड रहेगा, उसका विड्थ दिया है 15 मीटर्स। ओके, जहाँ से आपका रोड पास हो रहा है वही आपका फ्रंट सेटबैक के लिए काउंट होगा, वही रीजन से आप आपके प्लॉट में एंट्री लोगे। ओके, again it is given that it is a load bearing structure, so all the loading will be taken by the walls and no RCC columns or beams will be there, so we'll assume wall thickness to be 300 mm for a load bearing structure. Also फर्स्ट लाइन में दिया है कि इट इज अ G+1 मतलब ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चर है, डिटैच्ड टाइप स्ट्रक्चर है इन नॉन कोर एरिया। नॉन कोर एरिया मतलब क्या कि आपके कंजेस्टेड एरिया से दूर गांवतल एरियाज और गांव के एरियाज रहते हैं उनको नॉन कोर एरियाज बोलते हैं। सो इन दैट रीजन इट इज अ डिटैच्ड टाइप। सो आप देख रहे हो इधर एक मैंने एग्जांपल दिया है डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड एंड रो हाउस का। सो डिटैच्ड टाइप में क्या रहता है कि एक प्लॉट पे सिर्फ एक ही घर है तो वो डिटैच्ड टाइप हुआ। अगर एक प्लॉट पे मैं 2 घर दे रही हूँ ओके बाय डिवाइडिंग द एरिया, तो क्या होगा कि जो 1 वाला रूम है इन सेमी डिटैच्ड यू कैन सी इट हैज सेटबैक्स ऑन 3 साइड्स एंड 1 वॉल इन कॉमन ओके इन सेमी डिटैच्ड टाइप। वेयरएज इन रो हाउस क्या होगा कि जो बीच वाले घर है 2 to 5 से लेके उनको सिर्फ आगे और पीछे सेटबैक का एरिया मिल रहा है, whereas 1 and 6 has setbacks on 3 sides. So this is the difference between detached, semi-detached and row. You can see a detached एक बंगलो है जिसके चारों साइड पे जगह है। Semi-detached twin bungalow we can say, तो twin bungalow में क्या होगा कि उसको 3 साइड्स पे जगह मिलेगा और एक वॉल उसका कॉमन में रहेगा। एंड नेक्स्ट इज योर रो हाउस। तो रो हाउस में देख रहे हो कि अलग अलग घर है, उनको आगे सेटबैक है पीछे सेटबैक है, लेकिन जो बीच वाले घर है उनके 2 वॉल्स कॉमन में है और जो एंडिंग के घर रहेंगे उनको 3 साइड्स सेटबैक मिलेंगे। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन व्हाट वी अंडरस्टूड आर हाउस टू बी प्लान्ड एज अ डिटैच्ड टाइप। तो इसके चारों बाजू पे सेटबैक्स होंगे, लेकिन ये चारों बाजू में कितने सेटबैक्स कितने मीटर्स में छोड़ना है ये हमें कहाँ से पता
So that we will come to know from Unified Development Control and Promotion Regulations for Maharashtra State. This is UDCPR. हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का अलग रहता है. फॉर महाराष्ट्र वी आर फॉलोइंग दिस UDCPR. So in index page you can see page number 103 in chapter number 6. The regulations for outside congested areas, non-core areas as suggested in our problem statement, and the marginal distance or setbacks for those buildings are provided over here. So this is the corresponding table in the UDCPR, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका रोड का विड्थ कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लॉट साइज क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लॉट का विड्थ क्या होना चाहिए मिनिमम, देन सेटबैक कितना होना चाहिए फ्रॉम फ्रंट, रेयर, मार्जिन्स एंड द अदर रिमार्क्स. सो इन आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, okay, it is 13 by 19 meters का plot. If we multiply it, we'll get it 247 square meters. So your plot size is 247 square meters. Also the width of the road providing means of access to the plot is 15 meter. So width of the road is 15. अगर प्लॉट साइज 247 स्क्वायर मीटर्स है, विड्थ ऑफ रोड 15 मीटर है और विड्थ ऑफ प्लॉट आपका 13 मीटर है. सो ये तीन कंडीशंस कौन से इसमें फिट होते हैं वो हम लोग को चेक करना है. सो यू कैन सी कंडीशन नंबर 4. ओके, रोड्स ऑफ विड्थ 15 मीटर एंड अबव बट बिलो 18 मीटर. आपका रोड है वो 15 मीटर है. सो दिस कंडीशन इज चेक्ड. देन मिनिमम प्लॉट साइज इन स्क्वायर मीटर इज 200. अपना साइज है 247 स्क्वायर मीटर्स. सो ये सेकेंड वाला भी करेक्ट है. मिनिमम विड्थ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 10 मीटर्स. हम लोग का विड्थ है 13 मीटर. सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड. सो फ्रॉम दिस फोर्थ serial number 4, what we will get is minimum setback from road side in meters. Okay, front setback कितना है, 3 मीटर है. साइड का मार्जिन का सेटबैक इज 1.5 एंड ऑल्सो रेयर मार्जिन का सेटबैक इज 1.5. सो रिमेंबर, फ्रंट में 3, साइड्स में 1.5 और बैक साइड पे, रेयर साइड पे भी 1.5 मीटर्स. दिस इज द सेटबैक फ्रॉम UDCPR गाइडलाइन. Now this is our plot of 13 meters by 19 meters. सेटबैक्स छोड़ने हैं आगे से, जिधर से रोड पास हो रहा है वहां से 3 मीटर्स, साइड से 1.5 मीटर्स एंड बैक साइड पे 1.5 मीटर्स. एंड ये सेटबैक्स छोड़ने के बाद वी विल गेट अ ग्राउंड कवरेज, कि जहाँ पे आप एक्चुअल में आपका घर बिल्ड कर पाओगे. In last video I had explained the various principles of planning. तो वहाँ पे orientation of building units था, like bedroom को कौन सा orientation होना चाहिए, kitchen को कौन सा orientation होना चाहिए. So we are going to apply these principles over here. Okay, कोई भी घर का प्लानिंग बनाने के पहले हम लोग को एक बबल डायग्राम या एक रेफरेंस ड्राइंग लगेगा. So what I will do is, जहाँ से रोड है वहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट आएगा घर के लिए प्लॉट के अंदर. सो वहाँ पे मैं एक वरांडा दूंगी. ओके, वरांडा के बाद आएगा आपका लिविंग रूम. नाउ दिस लिविंग रूम शुड हैव अ अप्रोच टुवर्ड्स द साउथ साइड. ओके, ड्राइंग रूम का देख रहे हो इन द टेबल ऑल्सो इट इज साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट. देन आपका किचन का ओरिएंटेशन शुड बी टुवर्ड्स द ईस्ट एंड रेयरली नॉर्थ ईस्ट. So this condition is also fulfilled. किचन के साथ हमें डाइनिंग रूम प्रोवाइड करना है. ओके, डाइनिंग के बाद द टॉयलेट ब्लॉक. टॉयलेट का ओरिएंटेशन इज नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज साउथ वेस्ट winds will carry foul odor away from the house. So ये नॉर्थ वेस्ट में प्लेस किया. उसके बाद we have to place the bedroom over here. बेडरूम का ओरिएंटेशन इज नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट. So this is also fulfilled. एंड देन G+1 स्ट्रक्चर है. ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमें एक स्टेयरकेस लगेगा. सो आई एम प्लानिंग दिस स्टेयरकेस टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट रीजन. एंड हर एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन लगेगा. ओके, नाउ यू कैन सी दीज सर्कल्स. These circles are showing the entry points to the room. Okay, and these arrows are showing the circulation, कि अगर मैं लिविंग रूम में हूँ तो लिविंग रूम से मैं किचन भी जा सकती हूँ, डाइनिंग भी,
bedroom भी, toilet भी and staircase भी. So every orientation is perfect over here. Then talking about privacy. ओके मेरा घर का लिविंग रूम का डोर अगर मैं ये साइड पे राइट साइड पे बॉटम पे प्लान करूंगी तो बाहर के इंसान को अंदर के घर का एज सच कोई व्यू नहीं मिलेगा. बट इंस्टेंस अगर आप सेंटर में प्लान करोगे तो उसको किचन, डाइनिंग, बेडरूम, टॉयलेट सब बाहर से दिखेगा. सो टू अवॉइड दिस व्हाट वी कैन डू इज प्लेस द डोर्स एट द राइट साइड कॉर्नर. ओके एंड दिस इज हाउ you have to plan your residential house. Okay, आप principles of planning ध्यान में रखो कि किधर orientation होना चाहिए, placing of doors and windows क्या होने चाहिए, उसको proper circulation मिल रहा है कि नहीं वो पता होना चाहिए. And such a way you have to plan the units of a residential house. So in this video we saw what is the meaning of a scale. Scale क्या होता है, then north direction का क्या importance रहता है, and planning of residential unit considering the UDCPR guidelines and principles of planning. So in next video we are going to see how to actually draw a line plan on a paper, also to develop that line plan into a develop plan. line plan से develop plan में कैसे convert करोगे ये हम next video में देखेंगे. So stay tuned with me with my next. As of now I'll take a leave. Thank you. And don't forget to like and subscribe to my channel.